Tushar Dote, Assistant Professor, Institute of Pharmacy and Research, Badnera. Today I would like to introduce conductivity meter. These are the control panel of conductivity meter. कुछ इसके कंट्रोल्स मैं आपको बता देता हूँ. This conductivity meter having Systonic company, the model of conductivity meter is S942. Okay, having on off switch here, one adapter for electrical supply. Okay, the next one is conductivity cell. This one is conductivity cell. And this one is electrode. Okay, electrode for temperature measurement, and this conductivity cell for conductivity measurement. Okay, so we will attach all the here two probes for conductivity cell, one probe for electrode. Okay, firstly, before starting the apparatus, we will introduce the principle of conductivity cell. Everyone is known about the conductivity. Conductivity, the name itself indicates that conduct the activity. Okay, conduct the activity. What activity? Activity of ionic concentration, activity of known ionic concentration solutions. Okay, for example, here I will see different concentration are available here. To know the conductivity of that solutions, one is 0.1 normal KCl, another one is 0.01 normal KCl, 0.001 normal KCl, and here is a soil sample. Okay, the main parameter of conductivity meter is to the ionic concentration, that is everyone has to be known about the ionic concentration, that is cations and anions, positively charged cation and negatively charged anions. These anions, these cations is responsible to conduct the electricity, to generate the electricity. Okay, when the ionic cloud forms, they generate the conductivity and shows they are ready here. And one another parameter is required for to measure the conductivity is TDS. Everyone is known about the TDS. TDS is total dissolved solid amount. Okay, आप सभी को पता है कि जब डैम का सर्वे होता है TDS वैल्यू निकाला जाता है, या कभी भी कॉर्पोरेशन में कोई पानी आता है डैम से तब उसकी TDS वैल्यू निकाली जाती है. It will measured by using this conductivity attoconductivity meter. Okay, and this electrode is necessary to measure the conductivity in accordance with the temperature. Okay, temperature is very important factor. When temperature rises, the conductivity also rises. Okay, then we will start the apparatus. Okay, this will be an on-off button. Okay, here the manual setup of temperature is shown here, 26.6 degrees Celsius. These are the room temperature. Okay, we will not introduce our electrode in any solutions. ठीक है, यहाँ पे शुरुआत में आपको टेम्परेचर जो दिखेगा वो टेम्परेचर होगा रूम टेम्परेचर. आपको टेम्परेचर सेट करना है अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर or according to the monograph, the temperature of when you conduct the conductivity. Okay, you measure the conductivity, you have to set the temperature between 20 to 25 degrees Celsius. Okay, and the cell constant, one another factor is cell constant. Cell constant is very important factor for the calculations of conductivity. Okay, cell constant is nothing but the distance between these two probes. Okay, here are two probes, two platinum probes. Here the difference between. Okay, यहाँ पे आपको दिखेगा कि ग्लास रॉड है. ठीक है, प्लेटिनम ब्लैक यहाँ पे लगा हुआ है. प्लेटिनम ब्लैक के दो प्लेटिनम ब्लैक के बीच में जो डिफरेंस है उसे सेल कांस्टेंट बोलते हैं. और हर इलेक्ट्रोड की, हर कंडक्टिविटी सेल्स की एक सेल कांस्टेंट वैल्यू होती है. इसकी अगर देखेंगे हम तो अकॉर्डिंग टू दैट मॉडल इसकी सेल कांस्टेंट वैल्यू है 1.000, जिसे हमें सेट करनी पड़ती है. जब कभी भी हम कंडक्टिविटी लेते हैं कोई सॉल्यूशंस की तो हमें सेल कांस्टेंट वैल्यू एंड टेम्परेचर दोनों सेट करने पड़ते हैं.
कई बार ऐसा होता है, ये ऑटो कंडक्टिविटी मीटर है, ऑटो टेम्परेचर मेजरमेंट मीटर है। तो इसमें आपको आपका टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो तो आपको दिखेगा ही जब सेट करेंगे। इसमें हाई, लो, मीडियम, अनकेल ये ऑप्शंस दिए हैं, जिसमें आपको हाई पे 0 to 100 डिग्री सेल्सियस तक आप इसमें टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। मिनिमम आपको रखना है 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, बट आप इसमें टेम्परेचर सेट कर सकते हैं 0 to 100 डिग्री सेल्सियस तक। अकॉर्डिंग टू मोनोग्राफ आपको 20 to 25 ही रखना है, उससे ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट द डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉपरली। यहाँ पे आपको दिखेंगे कैल दिया है, अप एंड डाउन की बटन दी है, एस्केप एंड स्टोर दिया है, उसके बाद में मोड स्टैंड बाय दिया है, मेन्यू दिया है और एंटर दिया है। आप इसके पैरामीटर्स, इसमें जो भी आपको पैरामीटर्स दिखेंगे, कंडक्टिविटी से आपको टीडीएस निकाल सकते हैं, जो फैक्टर हम आप आगे देखेंगे कि उस फैक्टर के थ्रू आप टीडीएस भी उसका निकाल सकते हैं। तो उसकी अगर आपको प्रिंट चाहिए या आपको वो रीडिंग स्टोर करनी है, मल्टीपल रीडिंग्स आपको लेने हैं, जैसे कि मैंने 3 अलग अलग सैंपल्स लिए, 0.1, 0.01, 0.001, तो इसके सैंपल स्टोर भी करने हैं आपको, ये डेटा स्टोर करना है तो स्टोरेज का भी इसमें ऑप्शन है। अगर आपको इसकी प्रिंट चाहिए तो आप डायरेक्टली अटैच टू द पीसी और उसकी आप प्रिंट भी ले सकते हैं, ठीक है। पहले जनरली इन एंशिएंट टाइम्स, कुछ टाइम पहले अगर देखेंगे तो कंडक्टिविटी मीटर के साथ ये टेम्परेचर नॉब नहीं होता था, जैसे कि इसमें इनबिल्ट है, एक अलग से टेम्परेचर नॉब रहता था जनरली। तो अभी ऐसे कुछ ऑटो कंडक्टिविटी मीटर आया है कि जिसमें टेम्परेचर नॉब ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। सो फर्स्टली बिफोर इंसर्टिंग अवर इलेक्ट्रोड एंड कंडक्टिविटी प्रोब टू द सॉल्यूशंस, we have to wash it with that particular solutions and properly clean it. This electrode is very delicate. Okay, we will set the parameters before start the reading. Okay, here we enter into the cal button, calibration में बटन में आपको फर्स्ट पैरामीटर दिखेगा टेम्परेचर का। ओके, टेम्परेचर में जाके आपको एंटर करना है। यहाँ पे आपको दिखेगा लो, हाई और अनकैल। 3 ऑप्शंस आर हियर इन टेम्परेचर, लो, हाई एंड अनकैल। वी विल सेट द टेम्परेचर इन बिटवीन 20 to 25, अप्रोक्सीमेटली हम 25 टेम्परेचर रखते हैं इसका। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 25.8, इसको हम नीचे लेके आएंगे 25 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस हमारा सेट हो गया है। ये टेम्परेचर नेक्स्ट फर्स्ट टेम्परेचर जो है हमारा वो है रूम टेम्परेचर, अनदर वन इज टेम्परेचर सेट बाय अस, ठीक है। इसे हम एंटर करेंगे तो हमारा टेम्परेचर यहाँ पे एंटर हो जाएगा, सेट हो गया हमारा टेम्परेचर। ओके, देन एस्केप बटन, पीछे आएंगे, वन अगेन एंटर इनटू द कैल बटन। नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी, COND यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन, कंडक्टिविटी, इसमें हम एंटर करेंगे। फर्स्ट इज बाय सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट मैंने आपको बताया कि सेल कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय K विच इज 1.000। इसको हमें सेट करना है, ये ऑलरेडी सेट है यहाँ पे 1.000 पे मैंने ऑलरेडी सेट करके रखा है, ठीक है। तो इसे हम एंटर करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट इज मेनू में जाएंगे हम। मेनू में भी आपको सेम पैरामीटर्स देखेंगे, पैरामीटर्स एंटर करेंगे। कंडक्टिविटी, ओके, स्टैंड बाय सेट है ऑलरेडी, इसीलिए ये यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं बता रहा है। पैरामीटर्स, नेक्स्ट इज डेट एंड टाइम, इसमें आप डेट एंड टाइम भी सेट कर सकते हैं। इसमें मैंने ऑलरेडी डेट एंड टाइम सेट करके रखा है 28/10/20, 3:40 एग्जैक्टली। ओके, द नेक्स्ट इज मेमोरी। इसमें आप मेमोरी यानी जो भी आप करना है, रीड करना है या आपको कैंसिल करना है, कोई रीडिंग्स आपको कैंसिल करनी है जो कि स्टोर हो चुकी है, वो भी आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। रीड, अभी कोई रीड नहीं है, यानी अभी कोई पैरामीटर्स नहीं चल रहे हैं हमारे, इसलिए रीड नहीं कर रहा है। ओके, द नेक्स्ट पैरामीटर इज
डेट टाइम मेमोरी। ओके ठीक है, यहाँ पे हमारे सारे पैरामीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं। टेम्परेचर हमने 25 डिग्री सेल्सियस पे सेट किया, सेल कांस्टेंट हमने 1.000। ठीक है, अभी हम देखेंगे डिस्टिल वाटर की कंडक्टिविटी। ठीक है, we will insert the conductivity cell into that distilled water and electrode for temperature adjustment। इसे हमें कुछ देर के लिए स्टैंड बाय मोड पे रखना है, क्योंकि हमें टेम्परेचर भी सेट करना है, टेम्परेचर वहाँ तक आना चाहिए, तभी जाके एग्जैक्ट कंडक्टिविटी हमें मिल पाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम मोड का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमें कंडक्टिविटी हमारी मिल गई है 25 डिग्री सेल्सियस पे 0.065.1। इसके रीडिंग्स जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं, कंडक्टिविटी की रेंज जो होती है हमारी ये 0 से लेके 1000 मिली ओम्स तक होती है, जो कि वेरियस पार्ट्स में डिवाइड होती है, जैसे 0 से 20 माइक्रोमॉस पर सेंटीमीटर, 20 to 200 माइक्रोमॉस पर सेंटीमीटर, 200 to 2 मिली मॉस पर सेंटीमीटर, 2 to 20 मिली मॉस पर सेंटीमीटर, 20 to 200 मिली मॉस पर सेंटीमीटर, 200 to 1000 मिली मॉस पर सेंटीमीटर। यानी 0 से लेके 2000 मिली मॉस पर सेंटीमीटर तक हम इसमें TDS वैल्यू कंडक्टिविटी चेक कर सकते हैं, 0 से लेके 2000 तक। माइक्रो जो माइक्रोमॉस पर सेंटीमीटर होता है वो हमारा स्मॉल यूनिट होता है, मिलीमॉस पर सेंटीमीटर ये हमारा बिगर यूनिट होता है, मिली साइमन पर सेंटीमीटर ये भी हमारा बिगर यूनिट होता है, और जो कंडक्टिविटी SI कंडक्टिविटी हम कैलकुलेट करते हैं वो साइमेंस पर मीटर में हम कैलकुलेट करते हैं, साइमेंस पर मीटर। ठीक है, ओके। सो इसकी कंडक्टिविटी, डिस्टिल वाटर की कंडक्टिविटी हमारे पास आ गई है 063.9। ठीक है, 063.9। इसका कैलकुलेशंस में मैं आपको बताने वाला है TDS वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये तो जनरल हमने एक डिस्टिल वाटर का देख लिया कैलिब्रेशन के लिए। ओके, स्टैंडर्ड कंडक्टिविटी सैंपल्स के साथ हम चलते हैं आगे। फर्स्ट सैंपल इज 0.1 नॉर्मल KCl। ओके, 0.1 नॉर्मल KCl। यहाँ पे हम एस्केप करेंगे, हमारी रीडिंग सेव हो गई अभी डिस्टिल वाटर की। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर हमें ऑलरेडी सेट करके रखा है हमने। ठीक है, वी विल पुट द इलेक्ट्रोड इन दैट सॉल्यूशंस एंड कंडक्टिविटी सेल ऑल्सो। थोड़ी देर के लिए इसे स्टैंड बाय पे छोड़ना है हमें। ठीक है, तो अब हम इसका कंडक्टिविटी देखेंगे। इस कंडक्टिविटी इज राइज हो रही है अभी भी। सेवन 7.68 माइक्रोमॉस पर सेंटीमीटर। माइक्रोसाइमन में बताया इसमें, माइक्रोसाइमन में। ठीक है, यानी इसमें आयनिक कॉन्सेंट्रेशन कुछ ज़्यादा, इससे मैंने जैसे डिस्टिल वाटर का हमने देखा फिर भी उसमें थे कुछ आयनिक कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, इसके उसके रीडिंग ज़्यादा ही। ठीक है, इसकी कम आई। ठीक है, KCl में हमने दो ही यूज़ किए, पोटेशियम और क्लोरीन, दो ही आयन्स यूज़ किए। लेकिन डिस्टिल वाटर में कई बार हो जाता है कि डिस्टिल वाटर प्रॉपरली डिस्टिल नहीं हो पाता है, दैट्स वाई आयनिक कॉन्सेंट्रेशन उसमें ज़्यादा दिखता है। कई बार टैप वाटर में देखेंगे तो उससे ज़्यादा आपको दिखेंगे। ठीक है, तो KCl का हमें जो मिला है 0.1 नॉर्मल का, उसका मिला है कंडक्टिविटी 7.66 माइक्रोसाइमेंस। ओके, द नेक्स्ट वन इज 0.01 नॉर्मल KCl की हम देखेंगे।
Here again we will set the temperature if it can be changed. ओके यहाँ पे देखिए चेंज हो गया टेम्परेचर, बाहर जैसे प्रोब हमने निकाला टेम्परेचर यहाँ पे चेंज हो गया. इसे हम सेट करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे. वंस अगेन वी डीप द इलेक्ट्रोड एंड द कंडक्टिविटी सेल टू इट. ओके इसे थोड़ी देर के लिए स्टैंड बाय पे रखते हैं हम. 0.01 नॉर्मल का आपको ओके ठीक है, इसका हम ले लेते हैं रीडिंग. ओके 0.01 नॉर्मल, 0.01 नॉर्मल की रीडिंग आई है हमारी कंडक्टिविटी मीटर की 1450 माइक्रो साइमेंस पर सेंटीमीटर. 1450 माइक्रोमॉस में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप. 1.450 माइक्रोमॉस पर सेंटीमीटर आएगा इसका, डिवाइडेड बाय 1000 आपको करना है माइक्रोमॉस के कन्वर्जन के लिए. माइक्रो साइमेंस जो कि बड़ी रीडिंग होती है, बड़ी रीडिंग में साइमेंस आते हैं जनरली, आपको जो यूनिट्स दिखेंगे वो साइमेंस में दिखेंगे. ठीक है, ये रीडिंग काफ़ी ज़्यादा है जो कि 1450 काफ़ी ज़्यादा रीडिंग है, इसलिए साइमेंस में बता रहा है. इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, माइक्रो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, माइक्रोमॉस में. वो आपको डिवाइडेशन फैक्टर है 1000 का, उसे आप डिवाइड करके 1.450 इसका माइक्रोमॉस पर सेंटीमीटर रीडिंग आया है हमारे 0.01 नॉर्मल KCl का. ओके नेक्स्ट इज 0.01 नॉर्मल KCl. इलेक्ट्रोड और कंडक्टिविटी सेल इसमें डीप करते हैं. ठीक है, पहले तो हम कैल करके हम इसका टेम्परेचर सेट कर लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे. जैसे ही प्रोब को हम बाहर निकालते हैं ऑटोमेटिकली टेम्परेचर रिड्यूस्ड या राइज हो जाता है, जो कि हमारा रूम टेम्परेचर होता है. तो हमें बार बार इसको सेट करना पड़ता है. ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे हमें सो सेट करते हैं, एंटर एस्केप. सेट हो गया हमारा टेम्परेचर यहाँ पे. ठीक है, ओके ठीक है, इसका भी रीडिंग हमारे पास आ गया है 0.322 माइक्रो साइमेंस पर सेंटीमीटर. ओके 100 के ऊपर गया माइक्रो साइमेंस पर सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया. ठीक है, अगर पॉइंट में आता है तो ये माइक्रोमॉस पर सेंटीमीटर में आएगा. ठीक है, प्लीज सेव हो जाएंगे इसमें टाइम, डेट एंड रीडिंग. ओके टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, एंटर. ओके टेम्परेचर आपको बार बार सेट करना पड़ेगा, लेकिन सेल कांस्टेंट एक बार आपने सेट कर लिया 1.00, इसको बार बार सेट करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, सॉइल सैंपल की रीडिंग ले लेते एक बार. सॉइल सैंपल में देखिए, सॉइल सैंपल की कंडक्टिविटी है यहाँ पे 829 माइक्रो साइमेंस पर सेंटीमीटर. आयनिक कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है सॉइल सैंपल में. ठीक है, सेल्सियस इसका टेम्परेचर किया तो उसमें आयनिक कॉन्सेंट्रेशन यानी कंडक्टिविटी आपको ज़्यादा बताएगा, क्योंकि आयनिक क्लाउड जो है वो ज़्यादा क्लाउडी हो जाएगा, वो इसमें आयंस घूमते रहेंगे सॉल्यूशंस में और उसकी कंडक्टिविटी आपको ज़्यादा बताएगा. ठीक है, तो एक बार इसके कैलकुलेशंस हम देख लेते हैं. यहाँ पे मैंने लिया था टैप वाटर. ओके सैंपल डिटेल्स फर्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी. टैप वाटर हमने यहाँ पे लिया. सैंपल डिटेल्स इज टैप वाटर. कंडक्टिविटी मेजर्ड 290 मिलीमॉस पर सेंटीमीटर. अब कंडक्टिविटी की जो करेक्टेड कंडक्टिविटी है, करेक्टेड कंडक्टिविटी, मेजर्ड कंडक्टिविटी तो हमें यहाँ पे मिलती है, लेकिन करेक्टेड कंडक्टिविटी हमें निकालनी पड़ती है.
ठीक है, जब कभी भी हम कैलकुलेशंस करते हैं, जब भी हम इसके कैलकुलेशंस करते हैं, मेजर्ड कंडक्टिविटी आपको इसी में दिख जाएगी, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगी, लेकिन करेक्टेड कंडक्टिविटी हमें निकालनी पड़ती है। तो करेक्टेड कंडक्टिविटी के कैलकुलेशंस में आपको क्या करना है, मेजर्ड कंडक्टिविटी इनटू सेल कांस्टेंट, जो भी हमारी मेजर्ड कंडक्टिविटी मीन्स अभी टैप वाटर की मैंने ली थी वो है 290 मिलीमॉस पर सेंटीमीटर, उसे हम सेल कांस्टेंट्स मीन्स 1.000 से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू करेक्शन फैक्टर टेम्परेचर। टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने जैसे बताया था आपको टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंडक्टिविटी, क्योंकि टेम्परेचर जैसे राइज होता है कंडक्टिविटी भी राइज होती है। तो टेम्परेचर का फैक्टर यहाँ पे देखिए, टेम्परेचर करेक्शन फैक्टर वैल्यू दिया है मैंने, टेम्परेचर के हिसाब से उसके फैक्टर वैल्यू भी दी है, यहाँ पे मेंशन की गई है। जैसे 15 डिग्री सेल्सियस के लिए 1.21 करेक्शन फैक्टर होता है इसका। इसी तरह 15 to 30 डिग्री सेल्सियस तक इसके वेरियस करेक्शन फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने टैप वाटर हमने किया था 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो 25 डिग्री सेल्सियस मेजर्ड वैल्यू है हमारी 290, सेल कांस्टेंट है हमारा 1.000, करेक्शन फैक्टर 25 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से है 1.00। ठीक है, तो हमारी जो करेक्टेड कंडक्टिविटी है वो सेम उतनी ही आएंगे 290.00 माइक्रोमॉस पर सेंटीमीटर। ओके, दीज आर दी करेक्टेड कंडक्टिविटी 290.00 माइक्रोमॉस पर सेंटीमीटर। टेम्परेचर जैसे चेंज कम ज़्यादा होता है तो आप उस हिसाब से उसकी करेक्शन फैक्टर यूज़ करके कैलकुलेशंस निकाल सकते हैं। अगर आपका टेम्परेचर 25 की जगह 24 रहता है तो 1.02 आपको करेक्शन फैक्टर यूज़ करना है उसका टेम्परेचर का। ठीक है, बाद में आते हैं हम टोटल डिजॉल्व सॉलिड पे। तो टोटल डिजॉल्व सॉलिड का जो कैलकुलेशंस होता है वो करेक्टेड कंडक्टिविटी, जो करेक्टेड कंडक्टिविटी हमें मिली है अभी। ठीक है, फर्स्टली सैंपल डिटेल्स आपको लिखना है, जो भी आप लेंगे टैप वाटर, जो भी आप सैंपल लेंगे अननोन सैंपल, उसको आपको लिखना है। उसके बाद में मेजर्ड कंडक्टिविटी आपको लिखनी है, जो कि आपको ऑलरेडी यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद में करेक्टेड कंडक्टिविटी के लिए मैंने आपको कैलकुलेशंस बताया है कि जो मेजर्ड कंडक्टिविटी है इनटू सेल कांस्टेंट इनटू करेक्शन फैक्टर टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर का करेक्शन फैक्टर, तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में टोटल डिजॉल्व सॉलिड अगर आपको निकालना है तो करेक्टेड कंडक्टिविटी जो हमें मिली है 290.00 इनटू हमारा टीडीएस फैक्टर। अब टीडीएस फैक्टर जो होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड अकॉर्डिंग टू द मोनोग्राफ, ये होता है 0.55 to 0.9 के बीच में। ओके, इसे आप बीच में एवरेज वैल्यू भी इसकी ले सकते हैं, जैसे कि मैं अभी लूँगा 0.75 टीडीएस वैल्यू अगर मैं लेता हूँ, इसकी एवरेज फैक्टर है, आप एवरेज फैक्टर में से कुछ भी ले सकते हो 0.55 से लेकर 0.9 तक। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिया 290.00 इंटू 0.75, हमारी अप्रोक्सीमेट टीडीएस वैल्यू यहाँ पे मिल जाएंगी हमें 219.225 मिलीग्राम पर लीटर। और जो टीडीएस वैल्यू होती है, टीडीएस वैल्यू का यूनिट होता है मिलीग्राम पर लीटर। ओके, दीज आर ओवरऑल अबाउट द ऑटो कंडक्टिविटी मीटर। ओके, थैंक यू।